Right. The name of our subject is, which we are going to study, is properties of concrete. Right. So in this subject, right, you will be taught about the various steps which are involved in preparation of concrete, right, and in transporting the concrete, in placing the concrete. So all these steps, and then at the end we will also discuss deterioration mechanism, right, adverse mechanism, यानी जो कंक्रीट के अंदर वो जो तोड़ फोड़ होती है, ठीक है, that will also be discussed in it. And then we will also discuss about the mixed design, right, mixed design, that how we make the concrete in some suitable proportions so that a particular strength of concrete could be achieved. Not only strength, and some other properties, right? Other properties which are actually different types of the durability, right? So in today our lecture we will discuss about some basic definition of concrete. Although you all know what is concrete, but we have to fix some definition of concrete, right? And then what are the advantages of concrete as a structural material, right? And then disadvantages of concrete as a structural material. Because you know there are different types of the structural material, right, in construction industry. We have the steel, we have timber, right? So all these materials, these are used in structural engineering, in construction industry, right? In making or constructing various type of the structures, right? So what are the advantages which are associated with the concrete as a structural material, and what are the disadvantages of concrete? So we will discuss these things. Then concrete constituents or ingredients, right, कि किन से वो मिलकर बनता है कंक्रीट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टी है, चाय है आपके पास, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? मिल्क है, आपकी चाय की पत्ती है, चीनी है. इसी तरीके से there are different constituents of concrete, so we will discuss about these constituents as well. Now, qualities of good concrete. When we say this concrete is a good and this concrete is not good, so what are the basic parameters on which we decide these things? And then different types of the concrete. So this is a composite material because it is composed of more than one readily available constituents, right? It is the second most commonly used building material. So first of all, in the world, timber is used as a structural material, right? And after the timber, the most widely material used as a structural material is concrete. Concrete is a composition of binding material, aggregate, and water, right? Concrete is a versatile material that can easily be mixed to meet a variety of special needs and form a virtually any shape. ठीक है ना? आपके पास टिम्बर है, स्टील है, तो आपके पास वो लिबर्टी नहीं है, आज़ादी नहीं है कि आप हर किस्म का स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है जी? क्योंकि लेकिन कंक्रीट के अंदर आपको पास ज़्यादा लिबर्टी है, ज़्यादा चॉइसेस हैं आपके पास, ठीक है, कि आपको इसको किसी भी शेप के अंदर मोल्ड कर सकते हैं. इसलिए जितने भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं आप आसपास आपने देखे, तो देन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो है वो कंक्रीट से बने हुए हैं, क्योंकि जस्ट यू हैव टू डेवलप और यू हैव टू डिज़ाइन अ फॉर्म वर्क क्या कहते हैं कि जो हम शटरिंग वगैरह का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जो शटरिंग लगाकर
हम एक फॉर्म, मसलन कंक्रीट बीम हमने भरनी है, तो बीम का एक फॉर्म वर्क बना लेते हैं, ठीक है। या जैसे आपने कोई भी चीज़ आपने बनानी है, जेली बनाते हैं, तो आप एक ख़ास किस्म का बर्तन लेते हैं, जो जिस किस्म का बर्तन होगा जेली उसी किस्म की ही तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसी तरीके से कंक्रीट के लिए भी, कि जिस किस्म का आप फॉर्म वर्क बना लेंगे, कंक्रीट उसके अंदर इजीली वो मोल्ड हो जाएगी। एंड दिस थिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद other structural materials, for example steel and timber. So as a construction material of concrete has the following advantages. Concrete can handle the compressive stresses, right? Compressive stresses यानी जब भी हम वो किसी भी मटेरियल के ऊपर, ठीक है, किसी भी मेंबर के ऊपर कोई भी हम फोर्स लगाते हैं, तो आपको पता है कि उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, ठीक है, स्ट्रेसेस उसके अंदर डेवलप होते हैं। और स्ट्रेसेस एक इंटरनल चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से जब बीम के ऊपर, कॉलम के ऊपर लोड पड़ता है, ठीक है, जाहिर है कि जब बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग का एक तो अपना लोड होता है हर मेंबर का, जिसको हम सेल्फ वेट कहते हैं, आगे हम इसकी डिटेल, सेल्फ वेट, अपना वेट उसका, उसकी वजह से भी स्ट्रेसेस पड़ते हैं। और जिस पर्पस के लिए बनाई गई है, फॉर एग्जांपल मास्क बनाई है हमने, घर की कंस्ट्रक्शन हमने की है, मार्केट है, मास्क है, तो वहाँ लोगों ने चलना फिरना है, लाइव लोड्स होते हैं, एक होता है डेड लोड, एक लाइव लोड्स, कि जो कि किसी वक्त होता है किसी वक्त नहीं होता, किसी वक्त कम होता है किसी वक्त ज़्यादा होता है। तो उन लोड्स की वजह से वो जो कंक्रीट है इन द शेप ऑफ कॉलम और इन द शेप ऑफ बीम, उसके ऊपर, उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रेसेस जितने ज़्यादा डेवलप होंगे, ठीक है, स्ट्रेसेस वो डिपेंड करता है उस मटेरियल के ऊपर जिसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, कि अगर वो स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ उन स्ट्रेसेस से ज़्यादा है, तो देन वो उसको हैंडल कर सकती है। तो कंक्रीट के अंदर एक खसूसियत ये है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कंप्रेसिव कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को बहुत इजीली हैंडल कर सकती है, उसको कैरी कर सकती है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है, उसको काउंटर एक्ट कर सकती है, ठीक है। 10 टाइम्स मोर देन द टेंशन। एंड जनरली मोस्ट ऑफ, जितनी टेंशन अगर, तो यानी ये थोड़ा सा साथ ही उसने बता दिया कि डिसएडवांटेज है इसका, कि टेंशन के अंदर ये वीक होती है, ठीक है जी। एक चीज़ को देखें, पकड़ के आप यानी कि उसको दबाएं, ठीक है, दबाएं उसको, एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ की तरफ आप, मैं आगे आपको दिखाता हूँ ये, एक सेकेंड आपको शेप दिखाता हूँ कि ताकि कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। तो ये देखें, एक हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ द फोर्स विल प्रोड्यूस टेंसाइल स्ट्रेस इन इट, राइट, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये देखें, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि अगर हम एक ऐसी फोर्स लगाएं विच विल ट्राई टू रिड्यूस द फाइबर, ये देखें, रिड्यूस द एलिमेंट, एलिमेंट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, करेगा नहीं, वो कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। ये देखिए, ये अगर ये एक लोड इधर से लग रहा है, और जैसे हम मशीन के अंदर एक
कंक्रीट का क्यूब रखते हैं, इसको ऊपर से हम स्ट्रेस देते हैं, ठीक है जी। तो ऊपर का स्ट्रेस आने की वजह से क्या होगा, जो लोड है हमारा, दैट विल ट्राई टू शॉर्टन इट, इसको छोटा करने की कोशिश करेगा, कर नहीं सकता, छोटा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस किस्म के लोड को हम कहते हैं कंप्रेसिव लोड, और इस कंप्रेसिव लोड की वजह से जो इंटरनल स्ट्रेसेस बनते हैं, दैट इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। और इसी तरह से टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है जी, कि हम जो लोड, ये देखें, इसको वी आर ट्राइंग टू इलोंगेट दिस सिलेंडर, इसको इलोंगेट करने की कोशिश की जा रही है, और इसको हम कहते हैं टेंसाइल फोर्स। और टेंसाइल फोर्स की वजह से जो अंदर स्ट्रेसेस पैदा हो रहे हैं, दिस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेसेस। ये लिख लें कि ये हम टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कंक्रीट को फॉर एग्जाम्पल इधर स्टील दिखाया गया, आप इसी को कंक्रीट के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि इसको पकड़ के हम खींच रहे हैं, इसका मतलब है हम जो है एक टेंशन इस पे लगा रहे हैं, और इसकी वजह से इसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेसेस। और इधर हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, यानी हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, और इस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो हमारे पास यानी कि जो इसके अंदर स्ट्रेसेस होंगे, तो इसको हम कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, राइट। तो ये फिर आगे चीज़ें हैं, ये आगे आपके पास आएंगी तो हम आपको बताएंगे आप, ठीक है। जैसे चले, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको थोड़ा सा ऊपर किया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो अपर जोन होगा, अपर फाइबर्स, ये टेंशन के अंदर होंगे, और ये लोअर फाइबर ये कंप्रेशन के अंदर होंगे। इट इज़ जस्ट लाइक एक रजिस्टर है या बुक है या कोई गता है, उसको आप पकड़कर इस तरीके से कर्वेचर अपवर्ड करते हैं। तो ऊपर वाली साइड ये टेंशन के अंदर, नीचे वाली साइड कंप्रेशन के अंदर, इस तरह इसको डाउनवर्ड करें अगर इस साइड में, तो आप देखेंगे अपर साइड जो है वो कंप्रेशन के अंदर, और लोअर साइड जो है वो टेंशन के अंदर, ठीक है। यस, कॉपी, ठीक हो गया। कंप्रेशन का और टेंशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। जी, बस आप क्या है भाई, तो यार 5 चैप्टर तो वो बहुत बड़े। चलिए आप ऐसा करते हैं ना, मुझे को आपका ले लेते हैं, ठीक है। आप इसका आपको छठा सातवां, ठीक है, छठा सातवां आप कर लें, और बस नाइन चैप्टर, ठीक है। पाँच चैप्टर, 5 वो हो गए, फिर किस चीज़ के चल आप ऐसे करें, जो 9 है और अभी फुटिंग करें, 9 का 9 का मैं 10 करें, 2 है का, ठीक है, 9 वाला कर दें और 11 वाला कर दें, फुटिंग, ठीक है। जो चीज़ पूछनी है वो मुझसे पूछने के लिए 2-3 दिन, ठीक हो, 3 के ऊपर आपके साथ उसकी वजह बना दें, ये कहीं और इसकी वेटिंग हो रही है, इसको ठीक है। और क्विज और असाइनमेंट की वो भी फिक्स
ठीक हो मैं तेरे पास ले रहा हूँ So generally, most of the structure in our loads, these are compressive. Concrete is a brittle material which gives the advantage to make a rigid structure. ठीक है? तो brittle material क्या होता है और ductile material क्या होता है? तो इसकी definition आपने किसी और सब्जेक्ट में पढ़ी होगी, नहीं तो brittle material यानी कि वो वाला material जो कि फेल होने से पहले कोई considerable strain नहीं लेता. The material which does not undergo a considerable strain before failure is known as brittle material, right? And that material which undergoes a considerable strain before failure, that is known as ductile material. ठीक है, जैसे शीशा है, शीशे को आप पकड़कर कर्व उसको देना चाहे, उसको डेफ्लेक्ट करना चाहे, तो यू कैन नॉट डू इट, राइट? तो व्हाट डज इट मीन? वो टूट जाएगा, डेफ्लेक्शन से पहले पहले टूट जाएगा. तो इसका मतलब है ये एक ब्रिटल मटेरियल है. और डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल रबड़ पकड़ के आप उसको खींचना शुरू करें, तो जितना खींचेंगे वो खींचता चला जाएगा, हत्ता कि एक स्टेज आएगी कि वो टूट जाएगा. लेकिन टूटने से पहले, फेल होने से पहले उसने कंसिडरेबल स्ट्रेन गेन कर लिया था. ठीक है जी. तो दैट इज नोन एज ब्रिटल डक्टाइल मटेरियल. तो कंक्रीट के अंदर इसका एक एडवांटेज, एक जो है एडवांटेज है, जहाँ पर ब्रिटल मटेरियल के एडवांटेज होंगे तो वहाँ कंक्रीट हम एक एडवांटेजेस फॉर्म के अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे. और जहाँ पर हमें डक्टाइल मटेरियल के एडवांटेजेस होंगे वहाँ कंक्रीट जो है इसको यूज़ करना दैट विल नॉट बी एडविजिबल, easy to handle, specifically in case where plants are used that gives you ready mix concrete. plants का मतलब है कि वो ready mix के plants. ठीक है, तो रेडी मिक्स्ड कंक्रीट, ठीक है, हम जो कंक्रीट को हम तैयार करते हैं, ठीक है, यानी इसको इजीली हम इसको वो हैंडल कर सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट के अंदर नेक्स्ट है, कंक्रीट इज अ ड्यूरेबल, फायर रेजिस्टेंट. ये फायर रेजिस्टेंट है लेकिन अप टू सम एक्सटेंट. नॉर्मल फायर को ये रेजिस्ट कर देती है. इकोनॉमिकल भी है क्योंकि हमारे पास एग्रीगेट भी लोकल होता है, सैंड भी लोकल होती है. ठीक है जी. और द मेन थिंग जो कि कॉस्टली होती है वो सीमेंट है. एंड इट इज़ ईजी टू बी फैब्रिकेटेड ऑन साइट. साइट के ऊपर हम इसको ईजीली वो बना सकते हैं कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको हम साइट कहते हैं. कंक्रीट कैन बी रीइंफोर्स्ड विद अदर मटेरियल इजीली. कंक्रीट की को हम रीइंफोर्स्ड यानी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसको मजबूत बना सकते हैं दूसरे मटेरियल को भी इसके साथ यूज़ करके. जैसे स्टील को हम इसके अंदर यूज़ करते हैं तो ये एक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बन जाती है. ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी. ठीक है, देन इसकी वॉल्यूम लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसलिए टेंशन के अंदर ये बहुत वीक होती है. ठीक है, फिर वॉल्यूम इंस्टेबिलिटी, कि इसका वॉल्यूम जो है वो स्टेबल नहीं होता. वो किस वजह से? कि इसका जो सीमेंट पार्टिकल है, सीमेंट पार्टिकल वो जैसे ही वाटर के साथ मिलता है तो उससे हाइड्रेट्स बनते हैं. और ये जो हाइड्रेट्स होते हैं इनका वॉल्यूम 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट पार्टिकल. ठीक है, तो इस वजह से
हम यानी कि अगर आपका कोई सीमेंट का पार्टिकल वो पूरी तरह पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, खुश्क पड़ा रह गया, और इन फ्यूचर वो पानी के साथ मिलता है और पानी के साथ मिलकर वो हाइड्रेट्स बनाता है, तो वो हाइड्रेट्स अपनी जगह बनाते हैं अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीमेंट का पार्टिकल था अंदर, बीम के अंदर था, कॉलम के अंदर था, उसके आसपास चारों तरफ सराउंडिंग के अंदर कंक्रीट सेट हो चुकी है। तो बाद आपको पता है कि ये जो कंक्रीट है बीम की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में, तो अरसा दराज तक इनके अंदर मॉइस्चर चलता रहता है। मॉइस्चर जो है इसके अंदर मूव करता रहता है। छोटी छोटी जो अंदर ड्रेन्स हैं, ड्रेन मीन्स बहुत कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से भी, और छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स की वजह से ये मॉइस्चर एक जगह से दूसरी जगह हो जाता रहता है, ठीक है। और नए पोर्स बनते चले जाते हैं और नए पोर्स से नई ड्रेन से निकलती चली जाती हैं। तो जैसे ही वो इंटरेक्ट करती है किसी सीमेंट पार्टिकल, ड्राई सीमेंट पार्टिकल से, तो उसकी हाइड्रेशन हो जाती है, और जब उसकी हाइड्रेशन होती है तो उससे प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो जो प्रोडक्ट हैं उनको अकोमोडेट होने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है। और ज़्यादा वॉल्यूम लेने के लिए क्या वो क्या करते हैं, कौन सा स्ट्रेस लगाएंगे कंक्रीट के ऊपर? क्या जी, कौन सा स्ट्रेस लगाएंगे वो कंक्रीट के ऊपर? कंप्रेसिव सर। नो, वो धकेलेंगे, आसपास की कंक्रीट को धकेलेंगे। जब धकेलने को क्या कहते हैं, ये टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे। और आपको पता है कि कंक्रीट टेंशन के अंदर वीक होती है। हाँ, और टेंशन के अंदर आपको पता है कि कंक्रीट वीक होती है, इसलिए वहां से क्रैक्स ओरिजिनेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन इज द लो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, ठीक है। आम तौर पर हम ये करते हैं कि कोई चीज़ उसका वेट ज़्यादा है, अब हम वो फॉर एग्जांपल वो पाइप लेने स्टील का हम जाते हैं, तो जिसका गेज ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका वेट ज़्यादा होगा तो उसकी आमतौर पर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कंक्रीट के केस के अंदर, यानी अगर हमने स्टील के साथ वही चीज़ बनानी है तो थोड़ा स्टील उतनी स्ट्रेंथ दे रहा होगा, ठीक है, थोड़ा स्टील वो उतनी स्ट्रेंथ दे रहा होगा। लेकिन कंक्रीट के केस के अंदर हमें ये स्ट्रेंथ टू वेट रेशो ये लो होती है एज कंपेयर टू द कंक्रीट, ठीक है। कि वही एक गर्डर हमने लगा दिया, उसने कोई जगह से वो लोड ले लिया, अगर वही लोड हम चाहते हैं कंक्रीट से उठवाना, नॉर्मल कंक्रीट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वरना तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट शायद उसका वो उसको रिड्यूस कर देती है जो रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन होता है, लेकिन एक नॉर्मल कंक्रीट जो है वो उसका स्टील की निस्बत एज कंपेयर टू द स्टील वो उसका वेट ज़्यादा चाहिए स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी अपनी स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर सीमेंट है, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, वाटर है, एडमिक्सचर है, ठीक है। तो सीमेंट इसको आप इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, इसलिए हम इसके ऊपर मज़ीद अब टाइम वो नहीं लगाएंगे। तो ये एक सीमेंट यूज्ड इन कन्वेंशनल कंक्रीट इज नॉर्मली पोर्टलैंड सीमेंट। The name is the result of its similarity to limestone quarried in Portland। ये एक इलाका है इंग्लैंड के अंदर, तो उसकी जो क्वेरी है उसके अंदर जो लाइमस्टोन का कलर लाइमस्टोन है उस किस्म का इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसलिए हम इसको पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से करते हैं। तो प्राइम इंग्रेडिएंट्स आर लाइमस्टोन एंड क्ले, ठीक है, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं।
और ingredients are crushed, ground, blended and burned in cement factories. ठीक है, तो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर हम इसको क्रश्ड करते हैं, इसको ग्राउंड करते हैं, इसको ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड आपस में मिलाना, ठीक है, और फिर हम इसको बर्न करते हैं। तो सीमेंट कंपोजिशन के अंदर अगर आपको सीमेंट उठाएं, उसकी कंपोजिशन और उसके वो देखें तो उसमें इस किस्म की कंपोजिशन होती है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है जी, इतना है, सिलिका इसके अंदर इतना है, और मेन कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है जी, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जो कि इसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ को इंश्योर करते हैं, ठीक है जी। इसीलिए अगले मटेरियल्स आप देखेंगे कि हम डिफरेंट वेस्ट मटेरियल हम यूज़ करते हैं, तो उन वेस्ट मटेरियल के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड बहुत कम हो जाता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सीमेंटिंग मटेरियल। तो देन ये 3 ऑक्साइड्स हैं जो कि बहुत कम मिकदार के अंदर ये भी पाए जाते हैं। और देन टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के जो है ना, डिपेंडिंग अपॉन आवर यूज़, तो यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीमेंट, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। इसका अपन इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर में आप पढ़ चुके हैं इसको। फिर इसके बाद ये एग्रीगेट्स हैं, तो दीज एग्रीगेट्स मीन्स फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट दोनों, ठीक। फाइन एग्रीगेट को हम सैंड भी कहते हैं, रेत जिसे आप कहते हैं, और कोर्स एग्रीगेट इसको आमतौर पर ये लोकल लैंग्वेज के अंदर बजरी भी कहते हैं। तो कोर्स एग्रीगेट्स, तो 4.75 mm साइज तक अगर एग्रीगेट होंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइन एग्रीगेट, और 4.75 से एग्रीगेट बड़े होंगे तो इसको हम कहते हैं कोर्स एग्रीगेट। फिर 4.75 से मैक्सिमम लिमिट क्या होगी 4 इंच तक भी हो सकती है, और बाज़ औक़ात जो है ना वो हमने जो बहुत ही लीन कंक्रीट करनी है तो 6 इंचेस तक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे कोर्स एग्रीगेट होते हैं। तो आम तौर पर ये 70 to 80% ऑफ द वॉल्यूम कवर करती है, ठीक है। एक वॉल्यूम के अंदर असल एक एग्रीगेट के आसपास नॉर्मली जो पेस्ट है, यानी सीमेंट और वाटर की स्लरी, इसे हम सीमेंट पेस्ट कहते हैं, तो वो एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट के साथ जोड़ता है, ठीक है। एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट के साथ वो जोड़ता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्रीगेट स्ट्रेंथ। जो नॉर्मल कंक्रीट होती है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता कि एग्रीगेट की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 3000 PSI जो स्ट्रेंथ है 3000 PSI, तो उसका अगर आप कंक्रीट को अगर आप वो तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कैसे की जाती है कि उसको कंप्रेशन आपकी इंशाल्लाह क्लासें खुलेंगी तो आपको वो लैब के अंदर दिखाएंगे कि वो टेस्टिंग मशीन होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, तो हम उसको क्रश करते हैं कंप्रेसिव लोड लगाकर, और वो टूटता है। तो टूटने के अंदर अगर आप देखेंगे तो एग्रीगेट कहीं नहीं टूटेगा, बल्कि आपको पेस्ट लगेगा कि पेस्ट टूटा है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एग्रीगेट जो है उसकी स्ट्रेंथ का कोई नहीं पड़ा उसके ऊपर। हाँ, जब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हम करते हैं और पेस्ट को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देते हैं, उस वक्त जब हम इसको क्रश करते हैं सिलेंडर्स को, तो हम देखते हैं कि एग्रीगेट टूट गया है, ठीक है। तो इसलिए हाई स्ट्रेंथ के ऊपर एग्रीगेट अपना रोल प्ले करता है, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट के ऊपर जो एग्रीगेट का जो रोल है वो कोई कंसिडरेबल नहीं होता, ठीक हो गया जी। ड्यूरेबिलिटी में बी अफेक्टेड बाय एग्रीगेट स्ट्रेंथ, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी का फैक्ट हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी का एक होती है स्ट्रेंथ, कि आप क्या करते हैं कि जो कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हैं उस कंक्रीट के आप सिलेंडर्स बनाते हैं, ठीक है ना। एक ख़ास स्टैंडर्ड के सिलेंडर होते हैं 6 इंच डाया के, 12 इंच हाइट के, या आप क्यूब बनाते हैं, फिर उसको 28 डेज तक उसकी क्योरिंग करते हैं, ठीक है ना। उसकी क्योरिंग होती है 28 डेज तक। क्योरिंग कैसे होती है कि वाटर के अंदर या हैशन क्लॉथ के अंदर या रेत को आप वेट करके उसके अंदर रख देते हैं इसको,
और जिसकी वजह से कंक्रीट मेच्योरिटी की तरफ जाती है और वक्त के साथ साथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। तो इट इज़ believed that the most of the strength has been achieved at the age of 28 days. 28 दिनों के बाद आप उस सिलेंडर को या क्यूब को निकालते हैं और उसको मशीन के अंदर रखते हैं और उसको क्रश करते हैं, ठीक है। तो जितना लोड लगा है कि वो सिलेंडर आपका क्रश हो गया है, वो लोड उसको आप न्यूमिनेटर रखते हैं और डिनोमिनेटर के अंदर जितने एरिया पे आपने लोड लगाया था, ऊपर का एरिया देखिए 6 इंचेस का है, तो डाया आपका 6 इंचेस का है, तो π/4d स्क्वायर से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो लोड डिवाइडेड बाय एरिया, तो दिस इज नॉट, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आगे PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस के अंदर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है, ठीक है। पाउंड पर स्क्वायर इंचेस के टोटल लोड जिस पे क्रश हुई है कंक्रीट डिवाइडेड बाय वो कितना एरिया था जो इन कॉन्टैक्ट था मशीन के साथ, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाती है। 28वें दिन पे हम चेक करते हैं, पहले दिन पे नहीं, दूसरे दिन पे नहीं, ठीक है ना। कंक्रीट हम इसलिए बीम डाल दिया और बीम के बाद हम इसलिए कोशिश की जाती है फौरी लोड हम न डालें, क्योंकि वो अभी उसने स्ट्रेंथ अचीव नहीं की। तो आम तौर पर ये समझ जाता है कि वो 28 दिन के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो अचीव कर लेता है, कंक्रीट अचीव कर लेती है, ठीक है। तो इसलिए 28 दिन के बाद उन सिलेंडर्स को हम चेक करते हैं और उसकी हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं, और हम यही होप और यही हम बिलीव करते हैं कि जो फील्ड के अंदर इसी कंक्रीट की हमने बीम ड्रॉ की है, तो आज उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी होगी, या ये जो कंक्रीट कॉलम में डाल रहे थे और हम साइड पे इसी का सैंपल लेकर हमने सिलेंडर बना लिए, तो सिलेंडर की स्ट्रेंथ ये आई है, तो जो कॉलम की आज जो स्ट्रेंथ होगी वो भी यही होगी। क्योंकि हम देखें वो डायरेक्ट कॉलम के ऊपर तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, जब टेस्ट करेंगे, टेस्ट हमने करना होता है कि इसके ऊपर इतना लोड डालें कि ये फेल हो जाए। तो कॉलम को फेल कर देंगे तो फिर कॉलम दोबारा बनाना पड़ेगा, फिर इसी रेपिटेशन के अंदर ही चलते रहेंगे। बीम का टेस्ट करना होगा तो बीम को अपना फेल करेंगे पहले, फिर पता चलेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो हम क्या करते हैं फील्ड के अंदर कि जो चीज़ हमने कंक्रीट की बनाई है उसके हम रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल मीन्स कि जो कंक्रीट से हम वो काम कर रहे थे, बीम बना रहे थे, उसी में से कुछ कंक्रीट लेकर हम सिलेंडर भर लेते हैं, ठीक है। और नॉर्मली हम 3 सिलेंडर भरते हैं और 3 सिलेंडर की हम वो स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं और इन स्ट्रेंथ का एवरेज ले लेते हैं, तो हम कहते हैं यही स्ट्रेंथ उस बीम की होगी, यही स्ट्रेंथ उस कॉलम की होगी, यही स्ट्रेंथ उस फुटिंग की होगी, ठीक हो गया जी। तो 28 डेज के बाद, 28 डेज क्यों, वाई नॉट 5 डेज, वाई नॉट 10 डेज, वाई नॉट 15 डेज? तो रीज़न इज कि ये हमारी रिसर्च से ये साबित हुआ है कि 28 दिन के ऊपर वो मैक्सिमम, कंप्लीट नहीं, ये बात ध्यान में बात रखें, कंप्लीट नहीं, मैक्सिमम यानी मोर देन 90% स्ट्रेंथ वो दे देती है। और 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ अचीव करती है उसका रेट बहुत कम होता है, थोड़ा थोड़ा वो स्ट्रेंथ अचीव करती है। 28 दिन तक वो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्ट्रेंथ अचीव करती है। तो इसलिए आप आगे देखेंगे अपने ग्राफों के अंदर, और अगर मिक्स डिज़ाइन करेंगे तो 28 डेज की बड़ी अहमियत है। तो 28 डेज की रीज़न ये है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी में बी अफेक्टेड बाय एग्रीगेट स्ट्रेंथ, ठीक है जी। एग्रीगेट स्ट्रेंथ से ड्यूरेबिलिटी क्या चीज़ है कि कंक्रीट जहाँ पर पड़ी होती है, तो जिस एनवायरनमेंट के अंदर कंक्रीट पड़ी होती है, तो उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के वो पैरामीटर्स वो होते हैं, या एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं, जिनको हम डिटीरियोरेशन मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म कंक्रीट के अंदर होते हैं और ये ड्यू टू द इंटरनल सोर्सेज और ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं इन, ठीक है, ये जो कंक्रीट को तोड़ फोड़ करते हैं। तो इसलिए कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी इसकी वो अफेक्ट हो जाती है एग्रीगेट स्ट्रेंथ से। तो यानी कि जो पहला सेंटेंस था कि हमने कहा था कि एग्रीगेट की इतनी अहमियत स्ट्रेंथ की नहीं है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के लिए इसकी स्ट्रेंथ से की एक अहमियत है और वी कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दिस। शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो एग्रीगेट्स इम्प्योरिटी से ये फ्री होने चाहिए। राउंड स्मूथ पार्टिकल
गिव द बेस्ट वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी होता है कि ये जो अपना इजी टू फ्लो ऑफ द कंक्रीट, कि कंक्रीट कितने आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह, यानी कंक्रीट जब डाल दी ना किसी पॉइंट के ऊपर, बीम के फॉर्म वर्क में कंक्रीट डाल दी, अब उसके बाद हम एक छोटे से औजार के साथ कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, कंक्रीट को फ्लो करवाते हैं। तो जितना फ्लो आसानी से होगा तो हम कहेंगे ये इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा है, और जितना फ्लो मुश्किल होगा तो हम कहेंगे इसकी वर्केबिलिटी कम है। ठीक है जी। तो अंडरस्टूड बात है कि जितना वाटर हम कंक्रीट में ज़्यादा डालेंगे तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, और वाटर हम कम डालेंगे तो वर्केबिलिटी उसकी कम होगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज होगा कि जितना हम वाटर ज़्यादा डालेंगे तो वर्केबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन इन द मीन टाइम इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो वाटर और स्ट्रेंथ का आपस के अंदर जो रिलेशनशिप है, दैट इज इनवर्सली रिलेशनशिप, कि जितना वाटर ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा कम होगी। तो इसलिए हमने कंक्रीट के अंदर, आगे आप मिक्स डिज़ाइन में देखेंगे आप, कि हमने एक बैलेंस क्रिएट करना है वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ के दरमियान। वाटर ज़्यादा डालेंगे वर्केबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही स्ट्रेंथ कम होगी। वाटर कम डालेंगे स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इतना वाटर कम कि कंक्रीट बिल्कुल खुश्क हो जाए। ठीक है जी। और कंक्रीट को हम किसी औजार की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भी ना लेके जा सके, वहीं बीम के अंदर। ठीक है। और अगर हम इसको कॉलम के अंदर फॉर्म वर्क से ऊपर से हम नीचे कंक्रीट को फेंकें तो कंक्रीट की सेग्रीगेशन हो जाए। सेग्रीगेशन मीन्स कि पहले एग्रीगेट पड़े हों, और सेग्रीगेट, फिर उसके बाद नीचे गिरे फाइन एग्रीगेट, फिर उसके बाद सीमेंट गिरे, यानी कंक्रीट सारी की सारी अलग हो जाए। और जो कंक्रीट का प्रिंसिपल है कि वो उसका कोई भी यूनिट वॉल्यूम लें तो उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स वो सेम होने चाहिए, वो सेम नहीं होंगे। ठीक है जी। तो इसलिए सारी कंक्रीट का जो मिक्स डिज़ाइन का आगे पर्पज़ यही आ रहा है कि हम इस हिसाब से कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स बनाएं। तो वाटर भी एक इंग्रेडिएंट है, वाटर भी कॉन्स्टिट्यूएंट है एक कंक्रीट का। तो वो इस हिसाब से हो ऑप्टिमाइज्ड, इस हिसाब से हम उसको करें कि वर्केबिलिटी भी मुनासिब मिल जाए, स्ट्रेंथ भी मुनासिब मिल जाए, और ड्यूरेबिलिटी भी मिल जाए। तो round smooth particle give the best workability because particles with sharp corners tend to interfere with each other as the concrete flows, in addition to the increased surface area. वाटर है, एक थंब रूल है कि जितना आप जो भी पानी आप पी सकते हैं वो पानी आप कंक्रीट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो डिजॉल्व जो तो इम्प्योरिटीज़ वाला वाटर वो हम यूज़ ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि वो हाइड्रेशन को वो रिटार्ड करते हैं। ठीक है। जो कंक्रीट सीमेंट की हाइड्रेशन होती है उसको रिटार्ड करते हैं। एडमिक्सचर्स है कि हम कंक्रीट के अंदर एडमिक्सचर्स को भी हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वर्केबिलिटी हमें ज़्यादा चाहिए तो हम पानी डालेंगे, और पानी जब हम डालेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो समटाइम्स क्या होगा, अच्छा एक चीज़ है एडमिक्सचर, कि कई दफ़ा ये होता है कि हम जो वर्केबिलिटी है उसको बढ़ाने के दो तरीके हैं। या तो आप वाटर ज़्यादा डालें, तो जितना वाटर ज़्यादा डालेंगे वर्केबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा एडमिक्सचर ज़्यादा डालें। ठीक है। फ़र्क क्या है दोनों में, वाटर ज़्यादा डालेंगे तो स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, एडमिक्सचर ज़्यादा डालेंगे तो स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पानी आपको पता है कि सस्ता है, एडमिक्सचर एक महंगा है, वो बाज़ार से हम मंगवाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स वाटर के अंदर डाले होते हैं, और एडमिक्सचर ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है। पार्टिकल उसके अंदर वो सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर होते हैं, उसको हिला के हम वो यूज़ करते हैं, तो वो भी वर्केबिलिटी को बढ़ाते हैं, कंक्रीट वर्केबल ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो कभी अगर ऐसी सूरत हाल हो कि हमें वर्केबिलिटी भी ज़्यादा चाहिए और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा चाहिए, तो उस सूरत में हम वो जो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स है उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। कई दफ़ा अच्छा, फिर दूसरे जो इलाके हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सी से कम चला जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि रात को
जो कंक्रीट के अंदर वो पानी के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, और दिन के वक्त जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो वो था हो जाते हैं, ठीक है, मेल्ट हो जाते हैं। तो इस सर्कल को हम कहते हैं फ्रीज था, कि रात को फ्रीज और दिन को था, फ्रीज था साइकिल चलता है, ठीक है। तो इसके को भी अगर देखें, अब होता क्या है कि आपके पास आमतौर पर पानी है, और पानी जो है वो आपका बर्फ़ के अंदर जब चेंज होता है, तो आपने पढ़ा होगा एफएससी के अंदर कि उसको वो ज़्यादा जगह घेरता है, ठीक है, वो ज़्यादा जगह घेरता है। तो इसलिए वो ज़्यादा जगह घेरने की कोशिश करेगा, तकरीबन 9% जो है, 9% तकरीबन वो वॉल्यूम ज़्यादा घेरता है जो बर्फ़ होती है अपनी इक्वलेंट वाटर से, ठीक है। तो अब जगह ज़्यादा घेरने के लिए क्या होगा कि वो अगर आसपास की कंक्रीट सेट हो चुकी है तो वो अंदर से टेंसाइल स्ट्रेसेस लगाएगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस लगाएगी, तो क्या होगा कि वो कंक्रीट को तोड़ फोड़ देगी अंदर से। तो इसके लिए भी हम एडमिक्सचर यूज़ करते हैं, जिससे हम कहते हैं एयर एंट्रेंड एडमिक्सचर्स। तो वो एडमिक्सचर क्या करते हैं कि कंक्रीट के अंदर छोटे छोटे एयर बबल्स बना देते हैं। इसीलिए जब कंक्रीट, जब पानी जो है, जो कि इसके अंदर होता है, बीम के अंदर होता है या कॉलम के अंदर होता है, या सड़क आपने बनाई है कंक्रीट की उसके अंदर है पानी, तो वो पानी जब फ्रीज होता है तो वो ज़्यादा जगह घेरने की कोशिश करेगा। जब ज़्यादा जगह करने की कोशिश करेगा तो उसके आसपास एयर बबल्स होंगे, तो वो उनके अंदर इजीली एडजस्ट हो जाएगा और कंक्रीट के अंदर क्रैक्स नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए एडमिक्सचर्स को डिफरेंट जगहों पे हम यूज़ करते हैं। इन एडमिक्सचर्स को हम कहते हैं एयर एंट्रेंड एडमिक्सचर्स, ठीक है जी। तो डिफरेंट किस्म के एडमिक्सचर्स हैं। तो ये आपका, ये आपने जो बुक फॉलो करनी है वो एम नेविल की बुक फॉलो करनी है। आगे वो आखिर में मैं आपको आखिरी स्लाइड के ऊपर होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट बाय एम नेविल, उसको आप अपने पास ख़रीद लें और उसको देखें। ये जो पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ ये कंप्लीट लेक्चर नहीं है, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर जो भी चीज़ें समझने वाली हैं वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी वो चैप्टर उसके अंदर है, तो वहाँ आपने एग्रीगेट्स की तैयारी करनी है, सीमेंट की तैयारी करनी है, ठीक है। तो जो पॉइंट होगा डिस्कस करने वाला वो नेक्स्ट टाइम हम उसको आकर डिस्कस भी कर लेंगे। तो क्वालिटीज़ ऑफ गुड कंक्रीट, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और वाटर टाइटनेस होनी चाहिए। वाटर टाइटनेस मीन्स कि अगर ये पानी के साथ इसका इंटरेक्शन हो तो पानी इसके अंदर आसानी से न घुसे, यानी ये इसकी इम्परमिएबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये परमिएबल नहीं होनी चाहिए, इसको वाटर टाइटनेस कहते हैं। टाइप्स ऑफ कंक्रीट, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंक्रीट्स हैं कि अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग मटेरियल, कि बाइंडिंग मटेरियल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट, पर्पस ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो बाइंडिंग मटेरियल अगर हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं दैट इज सीमेंट कंक्रीट, लाइम यूज़ कर रहे हैं दैट इज लाइम कंक्रीट। फिर ये सीमेंट कंक्रीट और लाइम कंक्रीट का डिफरेंस है आपके सामने, ठीक है। फिर उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ द कंक्रीट पीसीसी, कि जब हम सिर्फ सीमेंट को हम यूज़ करें, एग्रीगेट को और कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर को यूज़ करें दैट इज प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, कि हम इसको रीइंफोर्स, नॉर्मली हम स्टील के साथ रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है। कार्बन फाइबर, अब तो और ज़्यादा काफ़ी सारे मटेरियल आ गए, लेकिन नॉर्मली हम जो इसको रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट मींस कि हम स्टील को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किन जगहों के ऊपर, कि जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ की कमी होती है, जो टेंशन जोन होता है, जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे होते हैं, वहाँ पर हम स्टील इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो दिस बिकम्स आरसीसी। देन प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट को स्ट्रेस आने से पहले ही, ठीक है ना, हम कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं। तो इस किस्म की कंक्रीट को हम कहते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट कीजिए, फिर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो टाइप्स ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है जी। फिर प्री स्ट्रेस कंक्रीट, के किस किस तरह हम कंक्रीट को प्री स्ट्रेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम स्ट्रेस आने से पहले ही जो हम टेंडेंस प्रोवाइड करते हैं उसके
उसके ऊपर स्ट्रेस हम इस किस्म का लगाते हैं कि जब डिफ्लेक्शन हो तो ये अपनी नॉर्मल शेप के अंदर आ जाए। ठीक हो गया। तो टाइप्स ऑफ द कंक्रीट अकॉर्डिंग टू पर्पस, वैक्यूम कंक्रीट है, एयर एंट्रेंट जैसे हमने अभी डिस्कस किए, फिर लाइट वेट कंक्रीट है, हैवी वेट कंक्रीट है। तो लाइट वेट कंक्रीट यानी किसी ऐसी जगह हमें कंक्रीट करनी पड़ जाए कि जहाँ पर हम कॉन्शियस हो कि डेड लोड ज़्यादा इंक्रीज ना करे, तो उसको हम कहते हैं लाइट वेट। यानी लाइट वेट के असल में हम एग्रीगेट यूज़ कर रहे होते हैं लाइट वेट के। सीमेंट वही होता है, वाटर भी वही है, तो सिर्फ एग्रीगेट जो कि 70 to 80% ऑफ द वॉल्यूम जगह घेरते हैं, तो उसको हम एक ख़ास किस्म के एग्रीगेट्स लेकर आते हैं। तो जो लाइट वेट एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो उसको हम कहेंगे लाइट वेट कंक्रीट, और हैवी वेट एग्रीगेट हम यूज़ करेंगे तो हैवी वेट कंक्रीट होगी। और हैवी वेट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं गेट कंक्रीट के ऐसी जगहों के ऊपर कि जहाँ पर वो फॉर एग्ज़ाम्पल एटॉमिक एनर्जी के इदारे होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, कि जहाँ पर कुछ रेडिएशंस ऐसी निकल रही हैं कि जो रेडिएशंस हेल्थ के लिए ख़तरनाक हैं, तो उन जगहों को ये हैवी वेट कंक्रीट को हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है ना। ये वैक्यूम कंक्रीट है, वैक्यूम कंक्रीट के हम कंक्रीट को पंप करके तो उसके अंदर यूज़ करते हैं। ये लाइट वेट एग्रीगेट्स है, कंक्रीट है, हैवी वेट एग्रीगेट कंक्रीट है। ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशो, तो हम जब भी बात करते हैं कि कंक्रीट के अंदर वाटर की, तो हम बजाय ये कहने के वाटर ज़्यादा कर दिया, वाटर कम कर दिया, वाटर इतने लीटर डाला, और इसकी बजाय हम बात करते हैं हमेशा वाटर टू सीमेंट रेशो। ठीक है। इन द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट द वाटर सीमेंट रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन द वाटर सीमेंट रेशो इज़ यूजुअली 0.5. Adding too much water will reduce much water will reduce द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जैसे मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूँ, एंड का सेग्रीगेशन भी इसके ज़रिए से आएगी। तो ये आम तौर पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, आम तौर पर उसने थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि अगर आपने फॉर डिफरेंट रेशो ऑफ कंक्रीट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर 50 kg ऑफ सीमेंट इज तकरीबन इतना। ठीक हो गया। ठीक हो गए। यस, ठीक हो गया। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है भाई? नो सर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हाँ भाई, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ें, ठीक है, बेसिक्स हैं ये कंक्रीट की, तो